Good afternoon, students. Already we have completed different method that are one is mass selection, second is pure line selection, third is year to row method and its modification, and fourth is recurrent selection and their different types. Okay, after the recurrent selection we are going to start a new method for the cross pollinated species is bulk method. Okay, bulk method given by Nielsen Ahel in 1908. Okay, and this method also known as mass method or depopulation method, because this method this method used to improve the population, means we are increasing the gene and genotypic frequency, which is very desirable for the getting crop improvement. Okay, that's why it is a population method. And another name is that mass method. Mass method called as because of we are plants uh, selecting the plants in bulk, means we are when suppose we are selecting 50 plants out of 100 plants, so these all the 50 plants we are bulk for the next generation. We are not doing any artificial selection in this method. We are adopting a natural selection strategy, or meaning of natural selection is that environment or nature is getting selected the plants in the field. Okay, but in the case of artificial selection, means human, means a breeder are selecting the plants which is very desirable. Okay, so that is the difference between natural selection and artificial selection. Natural means nature are selecting the plant, and artificial selection means human interfering in the selection process. Okay, the difference between natural selection and artificial selection is that in natural selection the selected plant are those plant having the desirable character, which is the means nature is involved, means they are favorable to the nature, or they are favorable for the what we will say, this is evolutionary process, means these are character have some wild gene also. Okay, or other some genes which is which is helps to buffer the population in the nature. But in case of artificial selection, we are not selecting those of plant which are means having the buffering capacity, or having the some evolutionary process. In artificial selection we are disturbing the evolutionary process, but not in a case of natural selection. Okay, so that is difference. Let us discuss about the definition of bulk method. Bulk method is a population breeding strategy of a crop improvement in which the natural selection effects is solicited more directly in the early generation of the procedure by delaying stringent artificial selection until the later generation. Students, meaning of this definition is that in initial generation we are adopting natural selection, and after that we are adopting artificial selection in the later generation. Okay, so this is the bulk method. In very simple language I will tell you, मतलब बल्क सिलेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो इनिशियल जो सिलेक्शन होता है, उस इनिशियल सिलेक्शन के अंदर हम मतलब नेचर को ही सेलेक्ट करने देते हैं प्लांट को. ओके, तो नेचर कुछ 5 to 6 जनरेशन तक हम नेचुरल सिलेक्शन ही करते हैं. हम मतलब कि जो इंटरफेरेंस नहीं करता है, ब्रीडर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा.
सिलेक्शन के अंदर। जैसा जो प्लांट आ रहा है नेचर में, कोई प्लांट मर रहा है तो मरने दो, जी रहा है तो जीने दो उसको, है ना। बस जो मिल रहा है प्लांट उसको हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में हम फिर ह्यूमन इंटरफेयरिंग होगी या ब्रीडर की इंटरफेयर होगी, ये जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है ना, ये इसका बल्क मेथड का है। ये एक प्रोसीजर दे रखा है बल्क मेथड का, जिसमें क्या करवा रहे हैं, दो वैरायटी ले रखी है ना, ए वैरायटी और बी वैरायटी। ठीक है, उन ए और बी वैरायटी के हमें क्या चाहिए, कुछ उन दोनों के गुण चाहिए, उन दोनों के कैरेक्टर चाहिए, फेवरेबल डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए किसी एक के अंदर। ओके, तो दोनों का ए और बी का हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है, क्रॉस करवा के सीड्स मिलेंगे F1 के। ठीक है, तो F1 के सभी सीड को, जो डार्क रेक्टेंगुलर जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, डार्क रेक्टेंगल, तो इसका मतलब है कि हमने इसको बल्क कर दिया। यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं किया F1 के अंदर। और F1 में वैसे सिलेक्शन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो F1 है बिल्कुल क्या बोलता है, हेटेरोजाइगस और होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है। ठीक है ना, तो F1 के जितने प्लांट मिले ए और बी के क्रॉस से, फिर क्या आएगा, F1 को एज इट इज़ ग्रो कर देंगे, F2 आ जाएगी। तो F2 के सारे सीड्स को एज इट इज़ सारे ग्रो कर देना है, F3 फिर एज इट इज़ F5 भी, है ना। तो F5 तक कितना हो गया, F1 2 3 एंड 4, अप टू F4 तक हम क्या करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि नेचर को इन्वॉल्वमेंट होने देंगे एज इट इज़। फिर F4 के बाद में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इन प्लांट हम सेलेक्ट करेंगे। F4 को उगा दिया, 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 5 से क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी के अंदर प्लांट्स को उगाएंगे। और शुरुआत में बता दिया था प्रीवियस जो स्लाइड्स थी कि इंडिविजुअल प्रोजनी रोज क्या होती है, हर एक प्लांट के जितने सीड्स मिलते हैं उनको रोज में उगा देना एज इट इज़। ठीक है, सेपरेट है ना, रोज में। और फिर ये F6 में भी करेंगे, F7 में भी ऐसा करेंगे। फिर F7 में जो जितना सीड्स मिलते हैं उनको सभी को एक साथ उनको बल्क कर लेंगे। उसके बाद में फिर PYT ट्रायल होगी, MYT ट्रायल होगी, और फाइनली सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यह आपका बल्क मेथड है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अप टू F4 तक हम क्या कर रहे हैं, बल्क कर रहे हैं, और बाकी F5 से लेके F7 तक हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए इस मेथड को बोलते हैं, है ना, बल्क मेथड, क्योंकि शुरुआत जनरेशन में बल्किंग हो रही है। नहीं तो दूसरे मेथडों में देखेंगे कि शुरुआत से ही हम क्या करने लग जाते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं बल्क मेथड। और नेचर इन्वॉल्व है, और मास है, मास मेथड भी बोल रहे हैं, क्योंकि सभी प्लांट को एक साथ मिक्स करके उगा देते हैं। तो ये बल्क मेथड होता है। अब ये जो नेक्स्ट जो मेथड है पेडिग्री मेथड, इस पेडिग्री मेथड में आप क्या देखेंगे, वापस से सेम दो वैरायटी ले रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है बल्क मेथड से। कैसे है, क्योंकि इसमें क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही होता है, और इसमें कम्प्लीटली रोल होता है ब्रीडर का, है ना। और इसमें ब्रीडर का बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, बहुत स्किल्डफुल लेबर चाहिए जो हमेशा फील्ड के अंदर रहे, हर प्लांट के बारे में उसको पता है कि कौन से प्लांट में कौन सी रो से हमें वो सीड मिला है। तो ये इट मीन्स स्किल्ड लेबर एज वेल एज और हाईली स्किल्ड ब्रीडर की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, पेडिग्री का मेथड में। और पेडिग्री मेथड क्यों बोलते हैं इसको, अब पेडिग्री आप जानते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन का पेडिग्री होता है। हमारा पेडिग्री का मतलब जैसे कि मैं हूँ तो मेरे फादर, और फादर के भी फादर ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के भी फादर ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये जो एक पेडिग्री रिकॉर्ड है, ये मतलब कि सन उसका मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये जो इस टाइप का रिकॉर्ड है इसको बोलते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड बोलते हैं। और इसलिए, और ये पेडिग्री जो पेडिग्री मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पेडिग्री रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और उसी की बेसिस पे हम
सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये पेडिग्री रिकॉर्ड होता है और पेडिग्री मेथड भी बता दिया कि क्यों है। तो इसका भी डायग्राम में आप देखिए कि दो वैरायटी का क्रॉस करवा रखा है, वैरायटी ए और वैरायटी बी का। इन दोनों का क्रॉस करवाया, F1 आ जाएगा। F1 के सारे सीड को बल करके मिक्स करके क्या करना है, F2 उगा देना है, और जिससे क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगी। और F2 क्या है, और वहाँ पे F2 में स्पेशली प्लांटेड करना है, दूर दूर प्लांटेड करना है, बल्क नहीं करना है ना। और फिर क्या करना है, उसके बाद में फिर क्या कर देना है, इंडिविजुअल मतलब F3 से इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कर देना है, मतलब इंडिविजुअल रोज के अंदर उगाना ही, फिर इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन होगा वहीं से। फिर बाद में जो प्लांट आएंगे F3 से, उन सभी को क्या करना है, फैमिलीज़ में उगा देना। मतलब कि जो प्लांट आएंगे आपके F3 के, उनको उनकी एक फैमिली बन जाएगी। उनके जितने सीड आएंगे उनको रोज़ में उगा दो, है ना। सपोज करो प्लांट नंबर से 70 सीड मिले, तो 70 सीड की एक फैमिली बन जाएगी। उनको सभी को रोज़ में उगाना है। ठीक है ना। सपोज करो कि रोज़ नंबर 1 के अंदर 10 प्लांट्स थे, तो 10 प्लांट्स की वो सारी जो सीड्स होंगे वो उनकी वो फैमिली है। तो ऐसे करके सभी जो रोज़ नंबर 3 उसकी भी एक फैमिली अलग होगी, रोज़ नंबर 7 की भी अलग रोज़ फैमिली होगी। तो ये जो आगे आपको दिख रहा है F4 के अंदर, इनकी ये फैमिलीज और प्लांट्स हो जाएंगे। और ऐसे करके सपोज करो कि F4 के अंदर जो फैमिली आपकी बन रही है, वो ये जो फैमिली नंबर 2 आपको डिज़ायरेबल लगी और बाकी रिमेनिंग डिज़ायरेबल नहीं लगी, तो फैमिली 2 को हमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके सारे सीड को अगेन उनकी सब फैमिलीज़ के अंदर उगा देना है। फिर ऐसे ही करके F7 के अंदर F6 की जो डिज़ायरेबल फैमिली होती है उसको सिलेक्ट करना है F7 के लिए। इस टाइप से ऐसे ही चलता रहता है ना। तो हमें ये पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि F3 में जो सपोज कि रोज़ नंबर 1 है और सब रोज़ 1 से लेके 100 तक है, तो सपोज कि रोज़ नंबर 6 डिज़ायरेबल है, तो 6 के डिज़ायरेबल है तो उसी की फैमिली को उगाना है। फिर 6 की जो मान लो कि रोज़ नंबर 2 अच्छा है तो वो 2 वाले को उगाना है, और रोज़ नंबर 6 की 2 की 1 अच्छा है तो 1 को वहाँ पे उगाना है। तो F6 में देखेंगे तो F6 की फैमिलीज कैसे आई, तो उसका पेडिग्री का कोड क्या होगा, 6, 2 और 1। रोज़ 6 के प्लांट फिर रोज़ 2 में उगाएं, रोज़ 2 के प्लांट फिर रोज़ 1 में उगाएं। तो ये इस प्रकार की पेडिग्री रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। F7 में अगेन इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन होगा, फिर बाद में सीड को सभी का मिक्स कर देंगे और PYT करेंगे, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स। उसके बाद में मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स, अलग अलग लोकेशन पे ट्रायल करेंगे, विच इज़ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड चेक ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटी। और उसके बाद में क्या करेंगे, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे फार्मर को। इस टाइप से पेडिग्री मेथड कंप्लीट हो जाता है ना। और ये जो डिफरेंस है प्योर लाइन और मार्क सिलेक्शन में, ये बाद में वी विल लेटर डिस्कस इट। इफ़ यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज 2 मेथड, bulk method and pedigree method, you can discuss with me in Google Classroom. Okay, thank you so much students.